Hello, dear students. Greetings from Dr. Sadiq Ali. In the last lecture, what we have seen? We have seen definition of what? Vector spaces. So, to define the vector space, we need one non-empty set, two binary operations, and one field. So that's why the notation of the vector space is VF like this, or sometimes vector space is denoted by like this. So this notation indicates V is a non-empty set which are going to become a vector space over the field F. So this field F is connected to this V, and therefore this notation is like this, or otherwise you can write in words also. V is a vector space. V is a vector space over the field F. So this is the notational part. Now in this video, what we are going to do, uh, in vector space V, this is a non-empty set, this is a binary operation, and this is a scalar multiplication. So what is this V? V is a non-empty set. So according to set theory, if V is a set, then definitely we can consider its a subset, है ना? सबसेट तो ले सकते हैं हम इसका. तो V का अगर हम एक सबसेट लेते हैं जो रहेगा W. W इज अ सबसेट ऑफ V सेट के हिसाब से, और फिर हमने वही सबसेट को लिया, वही बाइनरी ऑपरेशन जो V के थे वो हमने यहाँ पर लिखे, और फिर ये एक नया अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बन गया. और ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर भी अगेन वेक्टर स्पेस के 9 कंडीशंस को फुलफिल करता होगा या करता है. तो देन अगेन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ वेक्टर स्पेस. बट W, since W is a subset of V, therefore this vector space is called as a subspace. Subspace of vector space what? V. So it means that to check the subspace, we have to verify again 9 conditions for the elements of W. है ना? ये तो बहुत ही बड़ा काम हो गया. अब अगेन 9 कंडीशंस चेक करो. तो ये थ्योरी हमें ये बताती है कि इंस्टेड ऑफ चेकिंग ऑल दीज 9 कंडीशंस फॉर W, you have to check only one condition. And what is that? If you want to check whether this subset W is a subgroup of V or not. ये जो वेक्टर स्पेस होता है, वेक्टर स्पेस को और एक नाम है लीनियर स्पेस. लीनियर स्पेस. So how to check this subset will create a subspace of V in one condition. So if V is a vector space, if V is a vector space over the field F, and this W is a subset of V. Okay, subset, not subspace. It is just subset of V. Then W is said to be what? Said to be subspace of V, subspace of vector space V over a same field over F, if what you want to do, take any two elements from the field. These are means scalars, alpha and beta. If this alpha into one element from the W, that is denoted by W1, another scalar beta, and another element from the W, that is W2, take its addition. It is nothing but a linearity property. And if this whole quantity is again a member of W, for, and it is true for all W1, W2 belongs to W, and all alpha beta belongs to F. If this is true, then we can say that W is a subspace of. मैंने आपका काम बचा है. अगर ये एक कंडीशन नहीं होती तो पता है आपको 9 कंडीशंस करने होते.
हमने सिर्फ एक पे बोला। तो ये हमेशा याद रखिए कि अगर कोई वेक्टर स्पेस है, उसका सबसेट है एंड इफ यू वांट टू चेक वेदर इट इज अ सबस्पेस ऑफ दैट वेक्टर स्पेस और नॉट, then you check only this one condition and this condition will be true for all elements of W. ठीक है? After this, the new concept, we have to understand what is that the homomorphism. So homomorphism is basically what? Mapping, right? तो हमने ग्रुप में होमोमॉर्फिज्म देखा है, रिंग में भी देखा है, फिर आइसोमॉर्फिज्म भी देखा है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे आएगा, लेकिन ये जो होमोमॉर्फिज्म है ये वेक्टर स्पेस पे रहेगा। सो अ मैपिंग T, suppose T is the notation in our book I.N. Hustin. We are referring reference book. Our reference book is Topics in Algebra, written by I.N. Hustin. According to his notation, T is a mapping from suppose what are the U into V. U is a vector space and V is another vector space. So T is a mapping from one vector space into another vector space is said to be what? Homomorphism. Homomorphism if what are the conditions? If so there are two binary operations, that's why definitely we have to put two conditions for this homomorphism. So number one condition is you take any two elements from the U. So I'm taking U1 plus U2 and take its image under T. Usually ये जो चीज है हम ऐसा लिखते हैं, T of U1 plus U2 like this. तो ये हमारा यूजुअल नोटेशन है, लेकिन आपकी जो बुक है उसमें नोटेशन ऐसा है। दोनों का मीनिंग सेम है। अगर आपको ऐसा लिखने में कोई बहुत खासी दिक्कत हो रही है तो आप ये नोटेशन भी यूज कर सकते हो। आप डिसाइड कर लीजिए कि ये करना है कि ये करना है, दोनों का मतलब एक ही है। इसका भी मतलब होता है इमेज ऑफ U1 प्लस U2 अंडर द फंक्शन T, और इसका भी मतलब होता है इमेज ऑफ U1 प्लस U2 अंडर द फंक्शन T। एक सामने लिखा है, एक बाद में लिखा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपके ब्रेन को ऑर्डर देना है कि व्हाट इज इट्स मीनिंग। ठीक है? एंड इफ इट इज इक्वल टू image of U1 under T plus image of U2 under T। मतलब इसी कंडीशन को अगर आप ऐसा लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा T of U1 plus T of what? U2। आप सोचिए कौन सा लिखना है। एंड द अनदर कंडीशन इज अब इसमें कौन आना चाहिए? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो एक स्केलर लेते हैं अल्फा फील्ड से और एक एलिमेंट U से लेते हैं U1 और उसका इमेज अंडर T इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स इमेज ऑफ U1 अंडर T। तो इस कंडीशन को अगर आप इस नोटेशन में लिखना चाहते हो तो आप ये T ऑफ अल्फा U1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू T ऑफ U1 ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये हो गया। सो a mapping from one vector space U to another vector space V is said to be homomorphism if that mapping satisfy these two conditions। अब इन दो कंडीशंस को अलग अलग लिखने के बजाय आप इन दोनों कंडीशंस को एक इक्विवेलेंट वन कंडीशन में ये कर सकते हो कि ये दोनों कंडीशंस कैन बी रिटन एज T ऑफ अल्फा U1 प्लस बीटा U2 इज इक्वल टू, अगर आपको ये ऐसा मिला अल्फा ऑफ T ऑफ U1 प्लस बीटा ऑफ T ऑफ U2 like this, then ये एक condition is equivalent to these two conditions. Now it is your choice, but keep remember both conditions are equivalent. If any one criteria will be fulfilled by T from U to V, then this mapping is called as a homomorphism from one vector space to another vector space. How many mappings from U to V will become homomorphism? There are infinite mappings maybe,
and all these mappings if you collect in one set, so this is a set, and here are all these types of mappings from U to V, and these mappings are homomorphism. P is homomorphism. तो जितने भी homomorphism define होंगे अलग अलग from U to V, उन सब को हमने कलेक्ट करके एक सेट बनाया, and this is denoted by hom UV like this. तो home HOM means homomorphism. U मतलब from U to another vector space V, and this is a collection of all the homomorphisms from U to V. And we know that homomorphism में अगर हम 1 1 and on to जोड़ देते हैं तो वो homomorphism is called as isomorphism. तो same definition है. A homomorphism from one vector space to another vector space is 1 1 as well as onto, then that is called as a isomorphism. So इसको भी आप नोट करके रख लीजिए. ठीक है. अब इसके बाद let us take some short proofs or short theorems that is we can call. What are the theorems? If V is a vector space over F, if V is a vector space over F, over the field F, then prove that. The followings. So number one is alpha times 0 is equal to 0. Number 2 is 0 into V is equal to 0. Number 3, what we want to show that is minus alpha times V is equal to minus times alpha V. Okay. And number 4, if V is non-zero element in vector space V, then if the product alpha into V is equal to 0, अब दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है और उसमें V नॉन जीरो है, तो डेफिनेटली व्हाट इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 0. ये तो यूजुअली हम करते ही है. ये सारी चीजें आपको प्रूव करके बताना. बट व्हाट इज इट्स मीनिंग? मीनिंग ये है कि यहाँ का 0 और यहाँ का 0 दिखने में दो 0 है, बट दे आर डिफरेंट. यहाँ का जो 0 है ये V का एलिमेंट, मतलब आप किसी भी 0 वेक्टर को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, यू आर गेटिंग अगेन अ 0 वेक्टर. तो ये V का मेंबर है. ठीक है. अब ये जो 0 है ये वेक्टर नहीं है, ये फील्ड का मेंबर है. तो इट इज अ स्केलर. तो किसी भी 0 स्केलर से मतलब 0 नंबर से आप किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अगेन 0 वेक्टर ही मिलेगा. तो ये अगेन वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये स्केलर है. राइट नाउ ये दोनों चीजें तो आप समझ में आ गई होंगी आपकी, लेकिन इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझना है कि अल्फा स्केलर है तो ये जो है वो वेक्टर रहेगा, और अल्फा से 0 वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वेक्टर आएगा. स्केलर 0 से आप किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अगेन वेक्टर ही मिलेगा और वो 0 वेक्टर रहेगा. दैट इज द अंडरस्टैंडिंग. नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव. सो नंबर 1 को बहुत ही सिंपल तरीके से प्रूव करना है कि कंसिडर अल्फा इंटू 0. राइट. Now I am writing this alpha keeping as it is, and this 0 can be written as 0 plus 0. चलेगा. Now अब ये 0 plus 0 को by वेक्टर स्पेस है, तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो नंबर 2 कंडीशन वेक्टर स्पेस की कि ये अल्फा अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर, इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन राइट दिस एज अल्फा इंटू 0 प्लस अल्फा इंटू 0. ठीक है. रीजन दे सकते हो आप. तो आपने प्रूव क्या किया एग्जैक्टली कि दिस इंप्लाइज दैट आपका LHS ये था, तो अल्फा इंटू 0 इक्वल टू अल्फा इंटू 0 प्लस अल्फा इंटू 0. मतलब एक एलिमेंट में आप कोई दूसरा एलिमेंट ऐड कर रहे हो और आंसर आपको वही मिल रहा है.
ये तो तभी हो सकता है जब कोई एक एलिमेंट एडिटिव आइडेंटिटी रहे। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो कि ये एडिशन वही आ रहा है, तो इसका मतलब कोई एक एलिमेंट एडिटिव आइडेंटिटी है, तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इंटू जीरो एडिटिव आइडेंटिटी रहेगा, दैट इज व्हाट जीरो। या आप इसमें कैंसलेशन लॉ भी यूज कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू कैंसलेशन लॉ ये एलिमेंट ये एलिमेंट और ये एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा अल्फा इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, राइट। नंबर टू, सेम तरीके से आप पैरेलली प्रूव करोगे कि ये जो जीरो था उसको जीरो प्लस जीरो लिखोगे इंटू वी। वेक्टर स्पेस की कंडीशन नंबर थ्री इसको अलाउ करेगी ऐसा लिखने के लिए, जीरो इंटू वी प्लस जीरो इंटू वी, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, जीरो इंटू वी। मतलब ये लेफ्ट साइड जो आपने शुरू किया था, मैंने लिखा नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो अभी ये सेम एलिमेंट देखिए, यहाँ भी कैंसलेशन लॉ यूज करेंगे आप, तो अगेन आपको मिलेगा जीरो इंटू वी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। हाँ, नंबर थ्री जो हमें प्रूव करना है कि नंबर थ्री में हमको प्रूव करना है कि माइनस अल्फा, टू प्रूव दैट माइनस अल्फा टाइम्स वी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स अल्फा वी, ये प्रूव करना है। That is to show that or to prove that equivalent statement is minus alpha into v plus alpha into v is equal to zero। ये हमें प्रूव करना है। तो राइट, तो ये प्रूव करना हमारे लिए आसान रहेगा, इसलिए हम LHS लिखेंगे। LHS इज माइनस अल्फा टाइम्स v प्लस अल्फा v, ये LHS है। और इसको हम, ये इंटू वी है, ये इंटू वी है, तो अगर हम यहाँ पर इस v को अंदर लेके जाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अंदर का मल्टीप्लिकेशन का v हम बाहर भी ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा माइनस अल्फा प्लस अल्फा, और ये v डॉट और ये डॉट v कॉमन आएगा, and you know that minus alpha plus alpha is what, zero, and 0 into v already in number 2, ये देखिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, इसका आंसर आता है जीरो, एंड दिस इज योर व्हाट रिक्वायर्ड RHS। तो इस तरीके से LHS इज इक्वल टू RHS करके आप ये स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते, राइट। नाउ द फोर्थ स्टेटमेंट, अब ये फोर्थ कैसे प्रूव करेंगे कि v नॉन जीरो है और अल्फा इंटू वी का आंसर जीरो आ रहा है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा, एंड दैट मस्ट बी जीरो, दैट वी वांट टू शो दैट, बट हाउ वी कैन शो इट। सो हम प्रूव करेंगे, मैं यहीं प्रूव कर लेता हूँ क्योंकि ठीक है, या अगली स्लाइड पे हम ले लेते हैं इसको। इफ v is not equal to 0 and alpha into v is equal to 0 implies that alpha is equal to 0, that we want to prove it. Okay, so here given that v is not equal to 0, also given that the product of alpha and v is equal to 0, so we are writing here given v is non-zero vector, and also given that alpha into v is equal to 0. Now our claim is to show that alpha is equal to 0, and that alpha is a member of field, है ना, field का member रहेगा alpha scalar। so यहाँ पर हम contradictory method use करेंगे, assume that this alpha is not equal to 0। since alpha is a scalar and alpha is a member of f and f is a field, we know that in the field every non-zero element possesses its multiplicative inverse। तो ये नॉन जीरो आपने एज्यूम किया और वो फील्ड का मेंबर है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एफ में रहेगा। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड, नॉन जीरो है तो इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव रहेगा, राइट। ओके, नाउ व्हाट वी वांट टू डू इट कि ये जो इनवर्स हमें मिला अल्फा इनवर्स, इसको हम इस इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो
multiplying equation 1 alpha inverse into alpha v is equal to alpha inverse into 0. अब v वेक्टर स्पेस है तो ये अल्फा आप एक साथ लिख सकते हो, मतलब अल्फा इनवर्स इंटू अल्फा v लाइक दिस. ये वेक्टर स्पेस की आई थिंक सेकंड लास्ट कंडीशन है. अल्फा बीटा लिया था हमने, तो यहाँ बीटा नहीं है, अल्फा इनवर्स है. ओके. और किसी भी स्केलर से आप जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो. एंड वी नो दैट कि अगर किसी एलिमेंट को उसके ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा, दैट इज वन. ये आ जाएगा आपका जीरो. और वन इंटू वी वेक्टर स्पेस की आखिरी कंडीशन का वो हो जाएगा वी एंड इक्वल टू जीरो. लेकिन आपने तो यहाँ एज्यूम किया था, देखिए क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो. और अभी आप बोल रहे हो कि v इक्वल टू जीरो. व्हाट इज दिस? दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन. So you can write this, it is a contradiction to v is equal to 0, and therefore our assumption is wrong. क्या था assumption? Assume that ये था assumption. So our assumption is wrong. Our assumption is totally wrong, and therefore correct assumption would be alpha is equal to what? 0. And this is the proof of these four theorems. So I hope you understood all the things. तो इसके नोट्स बनाइए, और उसको कुछ डाउट होगा तो हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन. ओके, तो ख्याल रखिए. बाय बाय.